ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ రోజుతో సహా కలిపి ఈరోజు సాయంత్రం వరకు కలిపి పాజిటివ్ కేసులు కరోనా సంక్రమించింది అనే పాజిటివ్ కేసులు 503 లేటెస్ట్ టాలీ। ఇందులో खुशामदीद नाजरीन, मैं सैयद गौस मोइनुद्दीन आपका INE टुडे पर खैर मकदम करता हूँ। यूं तो होती है हर न्यूज़ पर आपकी नज़र, हम देते हैं रोज़ाना आपके लिए खास खबर। चलिए जानते हैं आज की खबर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासत तेलंगाना के डायनामिक सीएम माने जाने वाले के चंद्रशेखर राव ने आज शहर में जारी 21 दिनों के लॉकडाउन वाले माहौल का जायजा लेने के लिए अपने सारे काबिनी रुफका का एक जायजा इजलास तलब किया और बतलाया कि अभी तक सारी रियासत तेलंगाना में 503 कोरोना पॉजिटिव केसेस साबित हुए हैं। 14 लोगों की मौत वाक़ई हो गई। 96 को आइसोलेशन वार्ड्स में सेहतियाबी के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया और 393 केसेस की जांच करवाई जा रही है। दिल्ली के मरकजी इज्तिमा से वापस लौटने वाले करीब 1200 के बशमूल 1654 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। आगे उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि तेलंगाना रियासत की 123 GHMC लिमिट्स के साथ साथ दीगर 120 मिन जुमला 243 इलाकों को आवाम की भलाई के लिए नो एंट्री जोन में तब्दील रखा गया है, जहां से अभी तक इस वायरस के फैलने की कोई इत्तला नहीं मिली है। साथ ही आखिर में उन्होंने ये इशारा भी दिया कि 30 अप्रैल के बाद इलाकावारी लॉकडाउन को हटाने का फैसला लिया जाएगा। ఎవరైతే ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు 34 మంది వాళ్ళ ద్వారా వైరస్ సంక్రమించినటువంటి మరికొంతమంది వాళ్ళు 100% అందరూ కూడా డిశ్చార్జ్ అయిపోయినారు। ఒక వ్యక్తి కూడా మన దగ్గర లేడు ఇప్పుడు। అట్లానే తొలి దశలో తొలి సందర్భంలో ఎవరినైతే మనం 25,937 మందిని వివిధ ఫెసిలిటీస్లో క్వారంటైన్లో ఉంచినామో వాళ్ళు కూడా అందరు డిశ్చార్జ్ అయిపోయినారు। ఇప్పుడు ఎవరు కూడా లేరు మన దగ్గర। దాని తర్వాత లేటెస్ట్ టాలీ పాతవి కొత్తవి మొత్తం కలుపుకొని ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ రోజుతో సహా కలిపి ఈరోజు సాయంత్రం వరకు కలిపి పాజిటివ్ కేసులు కరోనా సంక్రమించింది అనే పాజిటివ్ కేసులు 503 లేటెస్ట్ టాలీ। ఇందులో 14 మంది చనిపోవడం జరిగింది మొత్తంలో ఈ 503లో। అందులో 96 మంది క్యూర్ అయిపోయి డిశ్చార్జ్ అయిపోయినారు। ఫారిన్ రిటర్నీస్ కావచ్చు, కొంత ఇండోనేషియన్ బ్యాచ్ కూడా ఒకటి ఉంది దీంట్లో, వారు కూడా అంతా కలిపినప్పుడు అంటే మొత్తం 110 మెంబర్స్ ఈ విధంగా జరిగింది। 14 మెంబర్స్ చనిపోవడం, 96 మంది పూర్తిగా నయమైపోయి వాళ్ళు డిశ్చార్జ్ అవ్వడం జరిగింది। ఇప్పుడు యాక్టివ్ కేసెస్ పేషెంట్స్ మన దగ్గర హాస్పిటల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు 393 మంది ఉన్నారు। 393 మన దగ్గర ఇప్పుడు ఉన్నారు। క్వారంటైన్లో అంటే ఈ మర్కజ్ అంటే నిజాముద్దీన్ ఘటన తర్వాత వారికి సంబంధించినటువంటి కుటుంబ సభ్యులు కావచ్చు, వారికి క్లోజ్ కాంటాక్ట్లో వచ్చినటువంటి వాళ్ళు కావచ్చు, వగైరా వగైరా అందరినీ కూడా ట్రేస్ చేసి మనం పట్టుకున్నాం। మర్కజ్ సంబంధించిన వాళ్ళని కూడా సుమారు 1200 మందిని మనం పట్టుకొని టెస్టులను కూడా చేయడం జరిగింది। తర్వాత వారికి సంబంధించిన వారి బంధువులను కూడా పట్టుకొచ్చి టెస్టులు చేయడం జరిగింది। తద్వారా మనకి ఇవన్నీ కూడా తేలినాయి। ఇప్పుడు క్వారంటైన్లో మన వాచ్లో 1654 మంది ఉన్నారు। 1654 మెంబర్స్ ఉన్నారు। ఇప్పుడు కేసులు మనకు రెఫర్ కావడం తగ్గింది। కొద్ది గొప్ప 3 4 5 వస్తూ ఉంటే వాళ్ళకు టెస్టులు చేస్తూ ఉన్నారు। ఇంకా వాళ్ళని చివరిదాకా మిగిలిన వాళ్ళు కావచ్చు, లేదా వీళ్ళతో కాంటాక్ట్ అయిన కొత్తగా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతున్న వాళ్ళు కావచ్చు, గతంలో మనకు లభించకుండా ఉంటే రిస్క్ తీసుకోలేం కాబట్టి అది చేస్తూ ఉన్నారు।
తర్వాత కంటైన్మెంట్ అంటే వ్యాధి ప్రబలకుండా నిరోధించేటువంటి చర్యలు, అది కంటైన్మెంట్ అని పిలుస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఏ ఏరియాలో ఉందో ఆ ఏరియాకి లిమిట్ చేయడం, కంటైన్ చేయడం. దీన్ని కూడా ప్రజలు చాలా గొప్పగా సహకరిస్తూ ఉన్నారు. ఇది రాష్ట్రంలో మొత్తం 243 చోట్ల చేయడం జరుగుతూ ఉంది, చాలా కఠినంగా. రాజీ పడే సమస్య లేదు, ఎందుకంటే వ్యాప్తిని ఖచ్చితంగా అరికట్టాల్సిందే, ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడుకోవాల్సిందే. అందులో జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో 123, జిహెచ్ఎంసీ ఇతర ప్రాంతాలలో 120, రెండు కలిపి 243 కంటైన్మెంట్ ఏరియాస్ గుర్తించి ఆల్మోస్ట్ అన్నిట్లో కూడా దాని మీద తగిన చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. అక్కడ ఖచ్చితంగా మంచి ఫలితం వస్తుంది మనకు. అయితే లక్కీ ఏంటంటే ఇప్పుడు హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్న వాళ్ళు కానీ, క్వారంటైన్లో ఉన్న వాళ్ళు शहर हैदराबाद के ज़बरदस्त शोहरत याफ्ता पहाड़ी शरीफ इलाके में वाक़ बारगाह शहनशाह दक्कन सुल्तानुल आरिफीन खुतबुल अख्ताब हज़रत सैयदना बाबा मोहम्मद शरफुद्दीन सहरवर्दी क़िबला रहमतुल्लाह अलैह के 754वें सैरोज़ा उर्स शरीफ का आगाज़ 16 शाबानुल मुअज़्ज़म 1441 हिजरी मुताबिक 11 अप्रैल 2020 बरोज़ हफ्ता यानी आज के दिन बहुत ही तखद्दुस और एहतराम के साथ अमल में लाया गया। लेकिन चूंकि कोविड-19 वायरस के मुतासरा लॉकडाउन वाले माहौल में 1 से 4 आदमी एक जगह जमा होने की मुमानियत है, बकौल बीजेपी गवर्नमेंट के ये वायरस इसी तरह से फैल भी सकता है। लिहाजा कुछ पुलिस के बंदोबस्त के साथ गिनती के कुछ मुताल्लिका लोगों ने वक्फ बोर्ड के इश्तराक से संदल माली के फ़राइज़ अंजाम दिए और साथ ही लोगों से ख्वाहिश भी की कि सभी अपने अपने घरों में फातिहा ख्वानी करते हुए अक़ीदत के फूल निछावर करें। इस मौके पर करोड़ों के चहीते आपके अपने IND टुडे के नुमाइंदे ख़ास असद बाबा क़ादरी ने हमारे चाहने वालों के लिए सज्जादा नशीन हज़रत क़िबला की इस ज़िमन में कुछ बातचीत रिकॉर्ड की है, मुलाहिज़ा फरमाएँ। साहब आपका नाम बताएं। अलहाज पीरज़ादा सैयद फरीदुद्दीन सोहरवर्दी क़ादरी, गद्दी नशीन आस्ताने आ गया, इमाम व ख़तीब मस्जिद बारगाह। कौन सी बारगाह है? खुतबुल अख्ताब शहनशाह दक्कन सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सैयदना बाबा शरफुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, ये 754वां ऑपरेशन है। हज़रत उर्स के ज़मन में क्या इंतज़ाम किए गए हैं और आवाम के लिए क्या अहकामात पुलिस की जानिब से दिए गए हैं? और पुलिस के तरह इंतज़ाम है। वो हालात ये है कि कोरोना वायरस की वजह से एहतियात करना ज़रूरी है, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि दूर दूर से रह के घरों पे फातिहा दे लेना, अल्लाह पाक से दुआ करके बाबा साहब की फातिहा दे लेना, घरों में रहना अच्छा बेहतर है। दरगाह को आना नहीं, क्योंकि दरगाह को आने नहीं बोल के दरगाह को आना, मगर हालात ऐसी है कि कोरोना वायरस की वजह से हो रहा। कई लोग ये परेशान हाल है, समझिए आप। इसके लिए एहतियात रहना चाहिए। और जो है दरगाह शरीफ का मुबारक है। पुलिस की जानिब से संदल के लिए कितने आदमी का परमिशन आपको मिला है? 4 आदमी का परमिशन है। यानी आवाम को आने के लिए यानी थोड़ा ऐसा एहतियात बरतना पड़ेगा। एहतियात करना है, क्योंकि वैसी बीमारी है कोरोना वायरस का, तो एहतियात करना ज़रूरी है। फातिहा पढ़ के बाबा शरफुद्दीन के मानने वालों के लिए आप दुआ कर दीजिए हज़रत। अख्ताब शहनशाह दक्कन सुल्तानुल आरिफीन सैयदना बाबा शरफुद्दीन मौला हुजूर के सत्ते में, साहबा के सत्ते में, सैयदुल शुहदाए करबला के सत्ते में, गौसुल आज़म सैयद सरकार सत्ते में, हुजूर गरीब नवाज सरकार सत्ते में, बाबा अली रहमान के पीर के सत्ते में, खुतबुल अख्ताब शहनशाह दक्कन सैयदना बाबा शरफुद्दीन वलिया सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह सरकार के सत्ते में, बाबा जान के उसे सकते में मजलिस का माल का कबूल फरमा। मौला जो हाजिर है जो गैर हाजिर है सबका माल का कबूल फरमा। और अपने अपने घरों में फातिहा दिला दीजिए और घरों में रहिए अपने आप से, बहुत आपके लिए बेहतर है। और हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह उसकी हमीद के सत्ते में ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाने परवरदिगार हुजूर के सत्ते में हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। बाबा शरफुद्दीन सरकार के उसी शरीफ के सत्ते में हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। ये कोरोना वायरस सबको ख़त्म हो जाना, कोरोना वायरस ख़त्म हो जाना।
और सबको सेहत व आफियत अता फरमाइए। अल्लाह पाक से दुआ फरमाइए हमारी। सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। तेलंगाना के वजीर सयाहत वी श्रीनिवास गौड़ ने आज कुकटपल्ली इलाके में वाक़ बालाजी नगर कम्युनिटी हॉल के एक इजलास में शिरकत करते हुए आसपास के बहुत सारे गरीब लोगों में ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया तकसीम की और इस मौके पर सभी को समझाते हुए बतलाया कि सीएम केसीआर की हिदायत के मुताबिक कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन का सख्ती के साथ पालन करें, वरना दीगरे जानों के लाले पड़ सकते हैं। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ के साथ वहां पर मौजूद थे स्टेट स्पोर्ट्स के एम कृष्णा राव, अल्फाबेटिकल इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन जगन मोहन राव और कुछ समाजी खिदमतगार नंदा पांडे, अंजी रेड्डी, వెంకటరావు वगैरह वगैरह भी। ఇప్పుడు కూడా మా తెలంగాణ బిడ్డలే మీకు అన్ని రకాలుగా ఒక భారతీయులుగా మేము గుర్తించడం, మీరందరూ మీరు ఇక్కడ ఏం మా రాష్ట్రం కాదని మీరు ఏం పిల్లబడకండి, ఈ రాష్ట్రంలో మీకు అన్ని సహకారాలు చేస్తామని చెప్పి బియ్యము, పప్పు, ఉప్పులు ఇవ్వడం జరిగింది గవర్నమెంట్ పరంగా। అయినా కూడా చాలామంది శాసనసభ్యులు ఈరోజు ఇక్కడ మా ఎమ్మెల్యే కృష్ణారావు గారు ఇంకా చాలామంది సరౌండింగ్లో కూడా సొంత డబ్బులతో కూడా మిగిలిపోయినటువంటి కార్మికులు కూడా ఇలా ఆదుకొని అన్నం పెట్టి ఒకవైపు అన్నం పెట్టించుకుంటూ బియ్యం పప్పులు ఇవ్వడం ఇలా మనం చూస్తూ ఉన్నాం। మరి ఎక్కడ లేనటువంటిది అభివృద్ధిలో కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం, ఆపదలో ఆదుకోవడంలో కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం అన్ని రాష్ట్రాలకు ఆదర్శంగా ఇలా మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చేసేటువంటి పద్ధతులు కూడా కరోనా నిర్మూలన కూడా ప్రపంచ దేశాలలో కూడా చాలామంది తెలంగాణ రాష్ట్రం బ్రహ్మాండంగా ఉన్నటువంటి రీతిలో జరుగుతూ ఉంది। ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ సమయంలో ఈ కష్టకాలాల్లో ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఒక మానవత్వంతో ఎంతో కొంత తోచినంత పక్కన ఉన్నటువంటి వారి పేదవాళ్లకు సహాయం చేసి ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఈ కరోనా నిర్మూలనలో ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి సూచనలు, సలహాలు అందరూ పాటించి అతి తొందరలో దీని నుంచి విముక్తి అయ్యేటట్టు మీరందరూ కూడా భాగస్వామ్యం కావాలని చెప్పి, మీ ప్రాణాలను కాపాడమే తెలంగాణ ప్రభుత్వ ధ్యేయం, తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయడమే మా ముఖ్యమంత్రి గారి ధ్యేయం కనుక మేమందరం కూడా వారి ఆదేశాల మేరకు పనిచేయడం జరుగుతూ ఉంది। దయచేసి ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా ప్రతి మనిషికి సాయం చేయాలి, ఇంట్లోనే ఉండి దీన్ని నిర్మూలన చేయాలి, సూచనలు సలహాలు పాటించాలి అనేది చేయాలి। ఎవరైతే ఇవి చేయకుండా అతిక్రమిస్తారో ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ద్రోహులుగానే మిగిలిపోతారు, దేశద్రోహులుగా మిగిలిపోతారు। ఎందుకంటే ప్రపంచం ఈ దేశాన్ని అటాక్ చేయడానికి శత్రు దేశాలు వస్తే సైనికులు పనిచేస్తారు మనం ప్రాణాలు కాపాడాలి। ఇలా వైరస్ నుంచి కాపాడడానికి ప్రతి మనిషి ఒక సైనికుడై చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంది। ఇంకా దయచేసి అర్థం చేసుకొని అందరూ కూడా సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది। అందరూ కూడా మేము రాజకీయ నాయకులు వచ్చినప్పుడు దయచేసి భూమి పడొద్దండి, ఇది పద్ధతి కూడా కాదు। ఫోటోలకు తర్వాత దానిలో కనిపించడానికి చాలా సమయాలు ఉంటాయి, ఈ సమయంలో మీరు వచ్చి అతి ఉత్సాహం చేస్తే ఏమైందంటే చెప్పేది మేము బయట అన్ని 99% ఆచరిస్తుంటాం, కానీ కెమెరాలు పెట్టే వరకు మీరు అందరూ రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మొత్తం కూడా మేము పాటిస్తామనేటువంటి భావన ప్రజలలో కలుగుతుంది। చదువుకున్న వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటే మంచిది, దయచేసి అందరూ కూడా దీన్ని కూడా పాటించాలని చెప్పి। तेलंगाना के वजीर टी श्रीनिवास यादव ने आज जामबाग डिवीजन के दौरे में वहां के इलाके ओम नगर बस्ती और एसडी नगर के करीब 1000 लोगों में राशन पैकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर जामबाग व मंगलहाट के कॉरपोरेटर्स भी उनके साथ साथ देखे गए। शहर हैदराबाद की तंजीम ह्यूमैनिटी फर्स्ट के लोगों ने आज कोरोना वायरस के लॉकडाउन से मुतासरा गोशा महल डिवीजन के मच्छीपुरा व साई बाबा टेम्पल के लोगों में ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया तकसीम की और सभी को इस मौके पर यह भी याद दिलाया कि तेलंगाना गवर्नमेंट माहौल में फैल जाने वाले कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है। तेलंगाना के वजीर ई दयाकर राव ने आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज में जिले जनगांव के आला सतही अहदेदारों का एक इजलास तलब किया और जिले के लॉकडाउन वाले हालात का जायजा लिया। इस मौके पर बतलाया गया है कि जिले में फंस जाने वाले करीब 64 बैरूनी शहरियों की जांच के बाद इनमें 7 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। आगे बतलाया गया है कि अगर हालात काबू में आ जाएंगे तो हुकूमत तेलंगाना लॉकडाउन वाले माहौल के सिलसिले में नए कदम उठाएगी। इस मौके पर मुकामी एमएलए मुती रेड्डी, जिला कलेक्टर राजैया वगैरह के साथ साथ बहुत सारे वहां के आला सतही अहदेदार भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद के मेयर बीर राम मोहन से आज क्रिश्चियन कम्युनिटी के बहुत सारे अहले खैर हजरात ने मुलाकात करते हुए
लॉकडाउन वाले मुतासरीन में तकसीम करने के लिए करीब 175 कुंटल चावल का जखीरा और 30 कुंटल दालें हवाले की। इस मौके पर मेयर ने उनका शुक्रिया अदा किया। शहर हैदराबाद के जियागुड़ा इलाके के टीआरएस कारपोरेटर मित्रा कृष्णा ने आज अपने ऑफिस के एक प्रेस मीट में जीएचएमसी से मुतालबा किया कि उनके इलाके के लोग मच्छरों से परेशान हाल हो गए हैं, लिहाजा सारे इलाके में ड्रोन के जरिए जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव किया जाए, क्योंकि मलेरिया बीमारी के फैलने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। इस मौके पर इलाके में पीने के पानी की कमी की शिकायत पर इन्होंने आबरसानी के जीएम विनोद कुमार से अपील की कि फौरन इस जानिब तवज्जो दी जाए। साथ ही लोगों को समझाया कि कुछ ज़रूरी हो तो ही मास्क लगाकर बाहर निकलें और कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में हुकूमत का साथ दें। आज जियागुड़ा डिवीज़न कारवान कॉन्स्टिट्यूंसी के जो बर्निंग मसाइल है, जो आवाम मच्छरों से बहुत ही परेशान है, हमने हुकूमत से जानिब से जीएचएमसी जानिब से एक 2 वीक्स बैक में हम डोम सिस्टम के द्वारा नदी में जो फंगस डेवलप होता उसको नष्ट करने के लिए हम डोम का सहारा लेके स्टार्ट किए थे। कोरोना की वजह से वो कार्यक्रम वहाँ पर स्थगित हो चुका है। मैं फिर एक बार ये जो मच्छरों का जो परेशानी हमारे जियागुड़े में 50 बस्तियाँ जो आम परेशान है, पहले तो कोरोना के जो वायरस से परेशान है, दूसरी परेशान जो मच्छरों का जो सुबह से लेकर शाम तक मच्छरों का इतनी बुरी हालत है जियागुड़े में कि लोग 1 घंटा बैठने के लिए भी तैयार नहीं। ऐसे समय में मैं जीएचएमसी कमिश्नर को एक कारपोरेटर होने के नाते से मैं गुजारिश करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जल्द से जल्द जो मच्छरों के जो पैदाश को नष्ट करने का जो भी तौर तरीके हैं उसको हमारे चीफ एंटोमोलॉजिस्ट डॉक्टर राम बाबू जी और एससी श्रीनिवास और एई याकूब जी खयूम जी जल्द से जल्द इस परेशानी को दूर करने के लिए हमेशा हम लोग स्पेशल ड्राइव करके जो नदी में से जो मेन है जो मच्छरों का पैदाश होता है, जो गुर्रब डेंका बोलते तेलुगु में, उर्दू में, तो उसको निकालने से ही हम लोग मच्छरों का समाप्त कर सकते हैं। उसके लिए एक स्पेशल ड्राइव लगाना बोल के मैं कई बार उनको आमंत्रित किया, रिक्वेस्ट किया, लेकिन डोम के सहारे हम लोग इसको पूरा नष्ट करेंगे, लेकिन वो खाली शुरुआत ही हुआ, लेकिन आज तक उसके द्वारा कोई परिसमाप्त नहीं हुआ। मैं चीफ एंटोमोलॉजिस्ट से रिक्वेस्ट करता हूँ, वो कहाँ हुआ, किधर हुआ, कहीं को ऐसा रुका दिए, मुझे समझ में नहीं आया। आज तक हमारे फॉगिंग का जो सिस्टम है उसमें और थोड़ा बढ़ोतरी करना चाहिए। जो मशीन एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 छोटे मशीन लगा के अगर फॉगिंग से अगर मच्छर मरते बोले तो ये मेरे लिए गलत साबित होती। इसके लिए स्पेशल ड्राइव लगाना चाहिए, फॉगिंग सिस्टम को बढ़ाना चाहिए। एक डिवीज़न में कम से कम 4-4 मशीनों की सख्त ज़रूरत है। ये इसके लिए चीफ एंटोमोलॉजी और मैदान में उतरना चाहिए और कमिश्नर साहब भी इसके ऊपर तवज्जो देना चाहिए। बस्ती बस्ती फिरना चाहिए कारपोरेटर के साथ, वार्ड मेंबर के साथ, एरिया मेंबर के साथ। नहीं तो मच्छरों से जिस तरह कोरोना की बीमारी है, ये मच्छरों की बीमारी से भी बहुत सारा नुकसान होने वाला है। मैं हुकूमत हमारे कारपोरेटर की जानिब से मैं कमिश्नर साहब को और चीफ एंटोमोलॉजिस्ट को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो जियागुड़े का दौरा करे और मूसी नदी जो भी है, मूसी नदी का जो प्रलक्षण करना चाह रहे उसको जल्द से जल्द करना चाहिए। नहीं तो आने वाले 15-20 दिन में लोग घर में नहीं रह सकेंगे, उतने मच्छरों का प्रॉब्लम है। साथ ही साथ जो लिक्विड जो डालते हैं आज तक वो भी लिक्विड का ये नहीं कर रहे। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारे एचएमसी के एंटोमोलॉजिस्ट से कि वो इन्वॉल्व करे, वो फील्ड पे आने का कष्ट करे। और दूसरी बात, जो हमारा जो पानी है का जो जियागुड़े में पानी जो वाटर की किल्लत है रोज़ पे रोज़ बढ़ते चले जा रही। मैं हमारे डीजीएम से भी रिक्वेस्ट करा और जीएम से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैनेजर से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
कि पानी के किल्लत को किस तरह हम दूर करेंगे, कि हमारे जियागुड़े को पानी का किल्लत दूर होना चाहिए। तो हमारा जो रिजर्वायर है, हमारे को कम से कम 12 से 14 पाउंड की पानी की ज़रूरत है। मैं उनसे 10 बार करा कि पहले एक जियागुड़े को पानी दे के जो अला बंडा दूसरों को दे तो उनको भी सेफ होता, हमारे को भी सेफ होता, लेकिन हमारे एक मानने को तैयार नहीं है ऑफिशियल। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पब्लिक बहुत ही सब्र करे, और सब्र का करते करते अगर वहाँ उज्जम होगा तो फिर हम वहाँ कर हमारा डीजीएम के पास घर को आना पड़ता। तो मैं आज अवाम की दया से उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो फील्ड में आए, पब्लिक की तकलीफ को महसूस करे और पानी टाइम पे देने की कोशिश करे, और कम से कम अच्छा पानी दिए। जो जियागुड़े में बहुत परेशानी हो रही, पानी की किल्लत हो रही, मैं फिर एक बार डीजीएम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो फील्ड में उतर के जो मसाइल को हल करने की कोशिश करे। जो रिजर्वायर है वहाँ से पानी जो पाउंड हमारे को मिलना है वो 3 बजे अगर पानी दिए तो हम 10 बजे तक उनको पहुँचा सकते। मैं फिर एक बार हाथ जोड़ से ऑफिशियलों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। साथ ही साथ हमारे जो जितने भी जियागुड़े के भाई है, बुज़ुर्ग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोरोना का जो प्रॉब्लम है उसको हम लिपटने के लिए अपने घरों से नहीं निकलना चाहिए। जो भी घर से एक आध जने जाके अपने सौदे जो नेसेसरी आइटम है वो ला लीजिए, फिर अपने घर को जाइए। लेकिन हमारे जियागुड़े के नौजवान आराम से फिर रहे, इसका नहीं जाना कुछ गलती होगा तो बहुत मुश्किल होगा। मैं माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से, जितने भी माइनॉरिटी मुस्लिम भाइयों से, सब लोग भी ये मास्क लगा लेना चाहिए। मास्क एक ऐसी चीज़ है, हमारा कवच है, जो दूसरों का वायरस हमारे तक नहीं पहुंच सकता। मैं फिर एक बार भाइयों से, माताओं से प्रार्थना करो, जो भी आप बाहर निकलेंगे मास्क लगा लेके बाहर निकलीजिए और डिस्टेंस को मेंटेन करिए। आप जो गवर्नमेंट जो आपको डायरेक्शन दिए, जैसा कि हाथ शुभ्रता से रख लेना चाहिए, जो कुछ भी साबुन अपने घर में उससे 2 बार धो लेना चाहिए, और जो गवर्नमेंट बताए सो जो हाउस में जो कर्म उसका पालन करे, घर में रहने का कोशिश करे। और ये जो मरम्मत है, कोरोना मरम्मत की हम सामना करेंगे, हुकूमत का साथ देंगे, हम मिल के ज़रूर इसका सामना करते हुए अपने अपने घर में रह के इसके विरुद्ध काम करना बोल के मैं आप सभी लोगों को हाथ जोड़ के विलंबना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। जो हमारे मुख्यमंत्री का जो प्रयास है, जो मुख्यमंत्री रात दिन मेहनत कर रहे, यहाँ की आवाम कुशल रहे, आरोग्य से रहे, इसीलिए अपने अपने घरों में बांधोड़ रख के रहने के लिए मैं और मेरी हुकूमत की तरफ से आपको फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने अपने मकानों में जाए, मंदिर को जाओ या मस्जिद को जाओ, अकेले जाके प्रार्थना करो, ज़्यादा ग्रुप में नहीं रहना बोल के मैं आपसे फिर एक बार हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ। जय तेलंगाना, जय केसीआर। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। शहर हैदराबाद की कुशाईगुड़ा पुलिस के लोगों ने आज जिले मेड़चल के बॉर्डर से लगे इलाके HB कॉलोनी और मौलाली के लोगों के नहीं लॉकडाउन को फॉलो न करने के इल्ज़ाम के तहत कई लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनकी 2 व्हीलर्स जब्त कर ली और बतलाया कि गिरफ्तार किए जाने वाले घूमते फिरते रहे थे। साथ ही वहां के लोगों को इस मौके पर इंतबाह भी दिया कि वो बाहर निकले तो सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखें, वरना दीगरे अपने घरों में रहकर महफूज रहें। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान ने आज बेगमपेट इलाके में घूम फिर कर लॉकडाउन वाले माहौल में गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने वाले करीब 500 खानदानों में ज़रूरियाती ज़िंदगी के सामान तकसीम किए। खासकर यहाँ पूरा बेगमपेट में प्रकाश नगर और ख़ासकर पाटीगड्डा, ओल्ड कस्टम बस्ती, जितने भी लोग यहाँ के थे जिसके पास वाइट राशन कार्ड्स नहीं थे, उनको आइडेंटिफाई करे। हमारे जो अखिल लीडर है, हमारे साथी है TRS पार्टी के,
और उनके साथियाँ पूरे मिलकर आइडेंटिफाई कर कर हर घर के एक एक फ़र्द को बुलाकर यहाँ पे क़रीब 200 लोगों के ऊपर हम लोग यहाँ पे आज सबको राशन सप्लाई करे हैं हमारे पास बेगमपेट में। तो मैं ख़ासकर आप लोगों के चैनल से गुजारिश करता हूँ कि वाक़ई काबिल तारीफ़ काम चल रहा है NGOs का, और ख़ुसूसी दूसरे भी जमात कई लोग ऐसे जो काम कर रहे हैं काबिल तारीफ़ है, क्योंकि आप लोगों के चैनल के ज़रिए मालूम होता है कि कौन मज़लूम है, कौन किस तक ये हक़ नहीं पहुँच रहा है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि और ऐसी चीज़ें भी आप लोग दिखाइए जिससे और लोगों को भी ये चीज़ का एक अवेयरनेस हो रहा है। तो मैं आप सबसे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ासकर पुलिस डिपार्टमेंट का और मीडिया का, और जितने लोग जैसा म्यूनसिपल है, बल्दिया है, जो रात भर काम करके हर किसी का साथ देते हुए, क्योंकि एक जान लेने वाली बीमारी से वो लोग जान पे लड़के जो काम कर रहे हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। शहर हैदराबाद के महकमे ट्रैफिक पुलिस के DCP के बाबूराव ने आज अपने एक मैसेज के जरिए शहर की आवाम से अपील की कि लॉकडाउन वाले क़वानीन की सभी लोग सख्ती के साथ पाबंदी करें। कुछ ज़रूरी हो तो ही तमाम लवाज़िमात मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह के साथ बाहर निकलें, क्योंकि पुलिस चेकिंग हर जगह एकदम सख्त कर दी गई है और गैर ज़रूरी निकलने वालों को चालान भी किया जा सकता है। नाजरीन को सलाम और नमस्कार। आप सबको मालूम है कई महीने से कोरोना शैतान से सारे दुनिया परेशान में है। लाखों लोग उसका मिट्टी पे आ गए हैं। आज तक 1 लाख चिल्लर लोग अपना मौत दे चुके हैं। मैं सारे लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये कोरोना शैतान को ख़त्म करना है तो हर इंसान आइसोलेशन हो जाना है, अपना घर में आइसोलेशन हो जाना है। कोई रोड पे आना है तो ज़रूर काम है तो आना है, बोले तो या हॉस्पिटल जाना है, नहीं तो तरकारी लाने के लिए, नहीं तो राशन लाने के लिए जाना है तो मोटरसाइकिल के एक ही आदमी जाना है, कार है तो 2 जने जाना है, और अपना घर से 3 किलोमीटर रेडियस में जाना है। उससे आगे गए तो हर जगह हैदराबाद सिटी में ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर दोनों मिलकर चेक पोस्ट चला रहे हैं। वो चेक पोस्ट में पकड़ के आपके ऊपर केस भी हो रहा है, साथ साथ में आपका गाड़ी भी डिटेन करना है। ये बातों को मद्देनजर रखते हुए आप रोड में मत आओ, रोड पे बेकार मत फिरो। और कल से अपना तेलंगाना स्टेट में एक कानून आया हुआ है, वो हर आदमी, हर इंसान मास्क पहनना जरूर है। रोड पे थूकना भी गैर कानून है। ये बातों को मद्देनजर रखते हुए आप लोग अपना ज़िंदगी को, ये लॉकडाउन पीरियड कब तक रहता है तब तक इसको अमल में लाना है। अमल करके दूसरों को एक मिसाल बन के रहना है। सब जने मिलके परवरदिगार से दुआ करेंगे, उनका नज़र हम सबको पर नाजिल होने के लिए जल्दी से जल्द अपना हिंदुस्तान में बल्कि सारे दुनिया में ये कोरोना शैतान को ख़त्म करने हैं। शुक्रिया, नमस्कार। रियासत आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर के रामपीचर्ला मंडल के रूरल पुलिस इंस्पेक्टर मुरली कृष्णा ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए लाल संदल की कीमती लकड़ी के 2 स्मगलर्स प्रसाद रेड्डी और गिरी नायक इद्दारैनी को गिरफ्तार कर लिया और करीब 17 लाख मालियती संदल की लकड़ी उनके पास से बरामद करते हुए जब्त भी कर लिया और उनके खिलाफ अलग से केस भी बना दिया गया। शहर हैदराबाद के गोशा महल के वाहिद बीजेपी एमएलए राजा सिंह के ताल्लुक से अरसे दराज से आवाम का जहन मजबूत चल रहा था कि एमएलए की मामूली सीट इनके लिए कोई वक्त नहीं रखती, लिहाजा वो पीएम मोदी व सीएम योगी के शाना बशाना चलना चाहते हैं। लिहाजा हालिया दिनों में पड़ोसी मुल्क चाइना के ताल्लुक से 5 अप्रैल को उनका नारा
कोरोना वायरस की जगह पे गो बैक चाइनीज वायरस बतलाने पर चाइना की एम्बेसी ने सख्त नोट लिया है और उनसे जवाब तलब कर लिया, जिस पर उन्होंने बतलाया कि हालिया दिनों में मीडिया के रूबरू यूएस प्रेसिडेंट ने इसे चाइनीज वायरस कहा था, लिहाजा ये भी अमेरिका का साथ निभाते हुए ऐसा बोले हैं। अब देखना है चाइना इस सिलसिले में क्या कदम उठाता है। तेलंगाना के मशहूर जिले करीमनगर में जहां हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी पार्टी ने अपने चमत्कारी कदम जमा लिए थे, वहां की मिल्लत इस्लामिया की जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर मोहम्मद अख्तर अली ने वहां की मशहूर तंजीम मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी के इश्तराक से ज़िले में लॉकडाउन से मुतासरा करीब 60 मसाजिद के मौज़नीन और इमाम हजरात में करीब 3.5 लाख की रकम तकसीम की, फ़ी मौज़न 2,500 और इमाम 3,000 के हिसाब में, और बतलाया कि कोरोना वायरस के लॉकडाउन वाले माहौल में सारी आवाम के साथ साथ ये लोग भी इंतहाई दुश्वारियों में आ गए थे। सारे भारत में लॉकडाउन के चलते महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पुलिस मार्च के दौरान वहां की आवाम अपनी बालकोनियों में खड़े होकर पीएम मोदी की चहीती ताली बजाकर उनका खैर मकदम करते नजर आए और इनकी खिदमात को सलाम भी पेश किया, क्योंकि बाहर निकलने वालों की ये डंडों से मदारात करते हैं। शहर हैदराबाद की पुलिस को किंग कोठी के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास आज एक 65 साल नेपाली की लाश दस्तयाब हुई। तहकीकात के बाद बतलाया गया है कि उसकी जेब से सर्दी खांसी बुखार के दवाइयों की एक स्लिप बरामद हुई है, जिसे कोरोना वायरस का मुश्तबा मरीज की हैसियत से गांधी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया था और इसकी इब्तिदाई जांच नारायणगोड़ा के लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर में की गई थी। पुलिस मजीद तहकीकात से जुड़ गई है। तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने आज राजभवन में वहां पर आने वाले लॉकडाउन से मुतासरा बहुत सारे शहरियों में खाने के पैकेट्स और ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान तकसीम किए। शहर हैदराबाद के मुगलपुरा डिवीज़न के पुलिस अहदेदारों ने कोविड-19 वायरस से बचाव के सिलसिले में तैयार किए जाने वाले मोहम्मद मोइनुद्दीन के गाए और संगीत से संवारे गए एक गीत को अवामी शऊर उजागर करने के लिए आज जारी किया और ख़दीम शहर के कई इलाके बीबी बाज़ार, तालाब कट्टा, मुगलपुरा, हरी बोली और गौलीपुरा वगैरह की आवाम को फेरी करवाकर इसे सुनवाया भी। रवि कुमार की जानिब से बतलाया गया है कि इस तरह के गीतों को तेलुगु और हिंदी जुबानों में भी गवाया गया है। ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।